चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो दिल्ली के दौरे पर हैं, रियासत में बारिश की सूरत हाल पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से फोन पर बातचीत की। उन्होंने तमाम जिला कलेक्टरों को चौकस रहने और परेशान हाल आवाम की मदद करने के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत दी। उन्होंने तमाम मुकम्मजात, बल्दिया, पंचायत राज, रोड एंड बिल्डिंग्स और बरकी बोर्ड के मुलाजमीन की रुख्सतों को मनसूख करने की भी हिदायत दी। तेलंगाना के 20 अजला में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किए गए। इसी दौरान मुकम्मल मुअस्ससात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना भर में भारी बारिश की पेशकशी की है। टीआरएस के कारकुदा सदर और रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने जल विहार टैंक बंड पर दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद के पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ब्लॉक और महल्ले की सतह से लेकर रियासती सतह तक पार्टी की तंजीम मजीद का काम दशहरा और दिवाली के बाद मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो मायूस न हो और पार्टी उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें मौजूद ओहदों पर नामजद करेगी। के.टी. रामाराव ने कहा कि टीआरएस की 20 साल तारीख है और तवील जद्दोजहद के बाद रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए हुजूराबाद इलेक्शन एक मामूली इलेक्शन है, लेकिन पार्टी इसे हल्का भी नहीं ले सकती। चुनाचे सबको मुत्तहदा तौर पर काम करना होगा। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी के प्याम और हुकूमत की कामयाब फलाही स्कीमों से मुतालिक मालूमात घर घर पहुँचाएँ। इसके लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इजलास में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा टी. श्रीनिवास यादव, महमूद अली, सबीता रेड्डी, मल्ला रेड्डी, अरकान असेंबली, कौंसल और पार्लियामेंट भी शरीक थे। टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल और रुकने पार्लियामेंट के केशवराव ने भी इस इजलास में खिताब किया। ప్రస్తుతం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో సోషల్ మీడియాకు కూడా అంతే మరి ప్రాధాన్యం ఇవ్వవలసిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నది। నా విజ్ఞప్తి గౌరవ మంత్రివర్యులతో ముఖ్యంగా మొదలు డివిజన్ స్థాయిలో 150 డివిజన్లకు సోషల్ మీడియా కమిటీలు కూడా వేసుకుందాం। అందులో కూడా చురుకైన యువకులు, యువకులను నియమించుకుందాం। వాళ్ళకు బ్రహ్మాండమైన శిక్షణ కార్యక్రమాలు కూడా పెట్టుకుందాం। మీరు ఒక స్థలాన్ని గుర్తించినట్టయితే హైదరాబాద్ నగర ఆఫీసు, నగర పార్టీ కార్యాలయాన్ని కూడా అందరికీ అనుకూలంగా ఉండే విధంగా బ్రహ్మాండంగా కట్టుకుందాం। ఇతర ఏ పార్టీకి లేని విధంగా అద్భుతమైన కార్యాలయాన్ని కూడా మన పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు ఒక వేదికగా, ఒక అభయాన్ని ఇచ్చే వేదికగా ఉండే విధంగా దాన్ని కూడా నిర్మాణం చేసుకుందామని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। కానీ ఇవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడితో మా పని అయిపోయింది అనుకుంటే కుదరదు। ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా పట్టుదలగా ఉన్నారు। మన పార్టీ అధ్యక్షుల వారు ఈసారి ఖచ్చితంగా వేసుకున్న కమిటీలందరికీ శిక్షణ కార్యక్రమాలు కూడా దసరా తర్వాత కానీ, దీపావళి తర్వాత కానీ పెట్టుకుందామన్న ఆలోచనలో కూడా పార్టీ ఉన్నది। ఎందుకంటే ప్రభుత్వం చేస్తున్న పనులు ఏ రకమైన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం ఒక్కసారి మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి। ఇవాళ తెలంగాణలో ఒక బిడ్డ పుడితే కేసీఆర్ కిట్టు, అదే రకంగా మగబిడ్డ అయితే 12,000 రూపాయలు, ఆడబిడ్డ పుడితే 13,000 రూపాయలు ఇస్తున్న సంస్కారవంతమైన ప్రభుత్వం। ఆ బిడ్డ పుట్టి కొద్దిగా పెద్దగా అంగన్వాడీకి పోతే ఆ బిడ్డకు, ఆ తల్లికి ఆరోగ్య లక్ష్మి పథకం కింద, బాలామృతం కింద నాణ్యమైన పౌష్టికాహారం అందిస్తున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం। ఇంకొద్దిగా పెద్ద పెరిగి ఆ బిడ్డ బడికి పోతానంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు మిట్ట మధ్యాహ్నం బ్రహ్మాండమైన సన్న బియ్యంతో నాణ్యమైన బువ్వను పెడుతున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం। కాదు నేను హాస్టల్లో ఉండి చదువుకుంటా అంటే భారతదేశంలో ఎక్కడా లేవు। 950 గురుకుల పాఠశాలలు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, అగ్ర వర్ణాల్లో ఉండే పేద విద్యార్థులకు దాదాపు 4,70,000 మంది విద్యార్థులకు ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రభుత్వమే మొత్తం బట్టలు, పుస్తకాలు, భోజనం, దుప్పట్లు, బూట్లతో సహా ప్రభుత్వమే చూసుకుంటూ 4,70,000 మంది విద్యార్థులు। मंगल को मूसलाधार बारिश ने तेलंगाना के राजन्ना, सिरसिल्ले जिला के कुछ दीगर हिस्सों में पानी भर दिया है। पीर की शाम से होने वाली मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाकों को पानी में डुबो दिया और गलियों को नालों में तब्दील कर दिया। आमतौर पर मसरूफ बस स्टैंड, प्रगति नगर, करीमनगर रोड और दीगर इलाकों में पानी भर गया। कई कॉलोनियों में लोगों ने बिना नींद के रात गुजारी जब पानी उनके घरों में दाखिल हुआ। सिरसिल्ला हाईवे पर तालाब के फटने से सड़क और आसपास के रिहायशी इलाके ज़ेरियाब आ गए। बारिश का पानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर में भी दाखिल हो गया, जिससे मुलाजिमीन को शदीद तकलीफ हुई। जिला कलेक्टर अनुराग जयंती और पुलिस सुपरिटेंडेंट राहुल हेगड़े मुतासिरा इलाकों में इमदादी इक़दामात की निगरानी करते नजर आए। रियासती हुकूमत ने शदीद बारिश और सैलाब के पेश नज़र ज़िले के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। सतवाहाना यूनिवर्सिटी ने शदीद बारिश के पेश नज़र मंगल को शेड्यूल तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए।
तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक वरंगल जिले के नदीकुंटा में मंगल की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। करीमनगर में 30 सेंटीमीटर बारिश और इसी ज़िले के बोरनपल्ली में 19.3 सेंटीमीटर बारिश हुई। वरंगल रूरल, करीमनगर, जयशंकर भोपालापल्ली, वरंगल अर्बन, राजन्ना सिरसिल्ला, मुलुगु और भद्राद्री कुत्तागुड़म अजला में 14 मुकामात पर 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कागजा सदर और रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने रियासती बीजेपी पर शदीद तनकीद की और कहा कि रियासती पार्टी के पास कोई इख्तियारात नहीं है और न ही टीआरएस हुकूमत की साजिशों को वो नाकाम बनाने का इख्तियार रखती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दिल्ली में बीजेपी के मरकजी कायदीन के साथ अपनी यारी बनाए हुए हैं और तेलंगाना में बंडी संजय टीआरएस हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या मजाक हो सकता है। जग्गा रेड्डी ने हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव को मुलतवी करवाने के बारे में कहा कि चीफ मिनिस्टर ने मरकज पर दबाव डाला। केसीआर और अमित शाह बंडी संजय को अब बली का बकरा बना रहे हैं। మాదిగా లోపల ఎలాంటి ఏమంటారంటే అది అదేం ఉండదు, ఉండదు. పాపం ఆయన ఫేర్ గేమ్ అంట, నాకు తెలుసు కృష్ణ మాదిగ గురించి ఫేర్ గేమ్ అంట. ఇప్పుడు సెంట్రల్లో మేము లేము. ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు మాతో కూడా కృష్ణ మాదిగ కలిసేవాడు. ఏబిసిడి వర్గీకరణ మీద పాపం ఎంత కష్టపడ్డాడో నాకు తెలుసు. నేను ఓపెన్గా మీడియా ముందు చెప్తాను. అట్లానే ఇప్పుడు కిషన్ రెడ్డి తోటి బీజేపీ వెంకయ్య నాయుడు తోటి ఇంకా ప్రధానమంత్రి కలిసి కూడా నేను తప్పు పట్టాను. ఎందుకు పట్టా అంటే ఆయన ఏ సెంట్రల్, అది సెంట్రల్ పార్టీ ఎవరు ప్రభుత్వం ఉంటే వాళ్ళు చేయాల్సిందే. మేము ఉన్నప్పుడు కూడా మీనా కుమార్ గారి ద్వారా మా రాష్ట్రంలో మాదిగా సామాజిక వర్గానికి నాయకులందరూ కూడా మరి చాలా సందర్భాల్లో ఈ వర్గీకరణ జరగాలనే దాని మీద ఉంది. ఆల్రెడీ దాని కమిటీ కూడా వేసారు. ఆల్రెడీ కమిటీ కూడా వేసి ఒక ప్రాసెస్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే వర్గీకరణ విషయంలో కొంత ప్రాసెస్ జరిగింది. దానికి ఆ సామాజిక వర్గం ద్వారా ఇష్టమాదిగా రిలీజ్ చేసింది. ఇప్పుడు సెంట్రల్లో బీజేపీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి రేపు అంత ఈజీగా తేలే అంశం కాదు ఇది. రేపు మళ్ళీ సెంట్రల్లో రాలేదనుకోండి, కృష్ణమాదిగా మళ్ళీ మా ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం రాదు, రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతాడు. అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు, మళ్ళీ మా దగ్గరకు వస్తాడు. అప్పుడు మేము చేస్తాం. ఇది బీజేపీలతో పంచాయతీ కాదు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ కమిటీ వేసింది కదా దాని మీద. నేనేంటి ఇస్తా, హామీ ఆల్రెడీ ఇచ్చింది కదా అని చెప్తున్నా. ఆల్రెడీ ఇచ్చినా అని చెప్తున్నా. जेएसएमसी की विजिलेंस एनफोर्समेंट विंग ने टोली चौकी के इलाके में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर किए गए तमाम गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया। जेएसएमसी का कहना है कि मौसम 12 में फुटपाथ पर गैर मजाज काबिजों की वजह से पानी के बहाव में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और ट्रैफिक का जाम हो जाना एक मामूल सी बात बन चुका है। जेएसएमसी ने इस कार्रवाई की मदाफियत करते हुए कहा कि इसके पास इस जमाने में अदालत के अहकाम भी मौजूद है। दूसरी तरफ फुटपाथ पर कारोबार करने वालों ने इस अचानक कार्रवाई पर शदीद एहतजाज किया और कहा कि बिना नोटिस के की गई ये कार्रवाई गैर कानूनी है। उन्हें क़ब्ल वक्त इत्तला दी जाती तो वो अपना सामान उठा लेते। अवाम ने मजलिस असम्बली कौसर महीउद्दीन को जारी इंतजामी कार्रवाई से मुतला किया। वो मकाम वाक़ा पर आए और जेएसएमसी के अहदेदारों से बातचीत भी की, लेकिन इन्फोर्समेंट के अहदेदार अपनी कार्रवाई नहीं रोकी। बनाते वक्त भी हमने रोका है, आज तोड़ रहे हैं, कल आप बनाएंगे तो भी फिर तोड़ेंगे। उन्हें साहब ये होटल बन गए 3-4 महीने ने और आप आगे तकलीफ दे रहे हैं। आप बनाने थे पहले रोकना, जब क्या कर रहे थे, जीएचएमसी पूरी सो रही थी क्या जब पैसे लेके? इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, धड़ाधड़ तोड़ दे रहे। नुकसान कौन भरेगा भाई, समझ में नहीं आ रहा। क्या तो भी ऐसा है, आप पहले का पहले आप लोग नोटिस नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, हमारे को आगे तोड़ दे रहे। कैसा होता बोलो आप लोग? मौका तो देना, ठीक है भाई, बल्दिया की जगह है तो ठीक है, थोड़ा वक्त देना, सामान ले लेते, पूरा नुकसान वगैरह कौन भरेंगे हमारा? ये ओनर नहीं, रेंट पे हम कैसा किराया भरेंगे, क्या करेंगे बोलो आप? होटल इनकी है भाई, होटल आपकी? जी होटल मैं खुद चला रहा हूँ, मोहम्मद शमशाद हुसैन है। होटल का नाम क्या है? महफिल है जी। हाँ यही है टोली चौकी में। कुछ भी टाइम नहीं दिया, आ रहे धड़ाधड़ तोड़ रहे हमारे पास। कुछ भी नहीं, हमारे कोई बोले नहीं। ठीक है हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो हमारे बोलना ना साहब,
नोटिस देना। आप आगे रात में बोलना हमारे को, भाई खाली करो तो हम कर देते, आगे तोड़ दे रहे चले आ रहे तो कैसा चलेगा बोलो हमारा। अब ये नुकसान कौन भरेगा हमारा। एक दिन पहले नोटिस दिए तो मालूम हो जाता पब्लिक अपना सामान हटा ले सकती। 2 घंटे भी नोटिस बगैर देखे डायरेक्ट लोग आके तोड़ रहे मतलब तो जरा मुश्किल होती ना पब्लिक को। पब्लिक का अभी सोचना चाहिए, लोग इन्फॉर्मेशन पहले देना चाहिए था, रात में इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। तो सुबह लोग निकाल लेते थे, पूरा सामान वगैरह निकाल लेके अपना सेफ्टी कर लेते थे। सडन बोले तो नुकसान हो जाता पब्लिक का। 1-2 घंटे पहले भी इन्फॉर्मेशन देते तो शायद यहाँ के लोग अपना सामान निकाल लेकर सुकून से रह सकते थे। मैं ये एरिया का रहने वाला हूँ जी। दारुल शिवरमपल्ली हैदराबाद के नाजिम रहीमुद्दीन अंसारी और मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने दारुल के अहाते में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर करने के मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के ज़िम्मन में नाफिज लॉकडाउन की वजह से दारुल अगरचे के माली बहरान से दोचार हुआ था और एक बिल्डर से माहदा किया गया था, लेकिन अब उसे मनसूख कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद दारुल के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि 1975 में मुमताज़ आलिम दीन मौलाना हमीदुद्दीन आखिल ने इस इदारे की बिना डाली थी और ये इदारा इंशाल्लाह आगे भी काम करता रहेगा। में माशाल्लाह जो बातें तय हुई है उसमें यह है कि जो डेवलपमेंट के लिए देने का वादा इरादा किए थे वो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो गया है। अब कोई डेवलपमेंट को नहीं देंगे, अहले खैर के ताउन से ही मदरसा चलाएंगे। मैं अहले खैर से ताउन की अपील करता हूँ और साथ में आप हजरात से ये भी गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए ताउन कीजिए। आपके बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ किसी गांव से आते हैं, किसी खेड़े से आते हैं और उन्होंने आके इल्म हासिल करते हैं, तो उनका ताउन यकीनन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। यहाँ पे लड़कियों की तालीम के लड़कों का है जो ज़मीन है जो लगे हैं यहाँ पे लड़कियों की तालीम नहीं, लड़कियों का हमारा ऑलरेडी मदरसा है। इंशाल्लाह हम यहाँ बनाएंगे, आगे ऑडिटोरियम बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, ऐसी चीज़ बनाएंगे जो मदरसे के अंदर काम आने वाली हो, वैसी चीज़ें इंशाल्लाह तामीर करेंगे। असम्बली हल्के अलवाल में भी दलित बंधु स्कीम पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए अलवाल के कांग्रेसी कायदीन के वफद ने एमआरओ से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की हिमा पर गए इस वफद में तमाम सीनियर कायदीन, महिला विभाग, यूथ कांग्रेस और SC/ST सेल के अहदेदार भी शामिल थे। शहर की मशहूर तरीन शाहरा पुतली बोलीता मुजम्मिया मार्केट फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ जिसम सिंह ने जबरदस्त कार्रवाई की और इस दौरान सड़क की दोनों जानिब तमाम कब्जों को बर्खास्त करवाया। फूल की दुकानात और मेवे की दुकानात को भी जो लंबे सड़क तक आ गई थी बर्खास्त कर दिया। हुक्काम ने मुकामी अवाम और व्यापारियों के सजाद की परवाह किए बगैर इस मुहिम को जारी रखा और इसके लिए JCB का तक इस्तेमाल किया गया। किशनबाग बहादुरपुर में आवारा कुत्तों की कसरत की वजह से मक्कीनों का जीना दूभर हो गया है। ताज़ा तरीन वाक़े में कुत्तों के एक झुंड ने मासूम बच्चे पर हमला कर दिया, लेकिन मकामी अवाम ने इस बच्चे को बचा लिया और दवाखाने को मुंतकिल किया। अवाम ने बल्दिया से इस मसले पर तवज्जो देने की अपील की है। हजरत नासर सिद्दीकी बाजावी के 150वें 3 रोज़ा उर्स तकरीब का 3 ta 5 सितंबर कोयलकुंडा जिले मेमनगर में इनेकाद अमल में आया। 4 सितंबर को बाद नमाज असर जुलूस संदन निकाला गया, जिसमें मुमताज़ उलमा, मशाइखीन और मुतक़िदीन की बड़ी तादाद शरीक थी। महफिल समा में गफ्फार नियाज़ी ने क़व्वाली पेश की। महफिल समा में शरीक उलमा में हजरत हबीब अलवी चिश्ती, मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी, जनरल सेक्रेटरी कुलीन सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड, मुफ्ती अब्दुल मुत्तलिब नक्शबंदी वगैरह काबिल जिक्र हैं। सिटी पुलिस ने 8 सितंबर को गुलदारों से खुलीकुतुब शाह स्टेडियम तक निकाले जाने वाली तहरीक मुस्लिम शब्बान की यूनिटी रैली की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान ने एक एलामे में ये बात बताई। वाज़ेह है कि मुश्ताक मलिक ने 2 हफ्ते कबल इत्तेहाद रैली निकालने का ऐलान किया था। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद अवैसी ने, जिन्होंने मंगल से उत्तर प्रदेश के 3 रोज़ा दौरे का आगाज किया, लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा साल आने वाले चुनाव के ज़िमन में ये उनके दौरों की इब्तिदा है। वो कई मुकामात का दौरा करेंगे। उनका मकसद BJP को हराना है और वो इसमें इंशाअल्लाह कामयाबी हो जाएंगे। बैरिस्टर अवैसी ने बताया कि उनकी पार्टी 100 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। इसी दौरान सदर रियासती मजलिस शौकत अली ने बताया कि बैरिस्टर अवैसी के प्रोग्राम में फैजाबाद के रुदुली में 18वीं सदी के बुजुर्ग शेख आलम मखदूम ज़ादा की दरगाह पर हाजिरी और एक आम जलसे से खिताब भी शामिल है। रिकॉर्ड रखता है
उन्होंने कहा कि बीजेपी में ऐसे कई एमपी एमएलए हैं जो जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ मुकदमा है, 30% उसमें सीरियस चार्जेस है उनके ऊपर, और बीजेपी की जो अलाई जेडीयू है उसमें 81% एमपीज के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में एक सांसद है मध्य प्रदेश से, उनके खिलाफ तो और सीरियस चार्ज है, आप जानते हैं, जो माजी में नाथूराम गोडसे को अपना हीरो माना और हेमंत करकरे के ताल्लुक से अनाप शनाप बका। और पांचवी बात यह है कि इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को जो एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 77 केसेस जो मुजफ्फरनगर राइट के थे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने विड्रॉ किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया, और 2007 का जो गोरखपुर का केस उनके खिलाफ था, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं देता। तो इससे एक बात और इससे बात साफ जाहिर हो गई कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा, और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती, तो हो सकता, या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। तो ये तल्ख हकीकत है, और भारत के कानून के लिहाज से अभी तक उन पर किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है। और उन भाभी हमारी बड़ी बहन भी हैं, वकील साहब भी उनके हैं। तो ये आपको सवालात आप करने के बजाय मैं खुद उन सवालात का थोड़ा बहुत तजुर्बा मुझे है, इतना बड़ा नहीं है आपकी तरह। आपका और मेरा वक्त बचाने के लिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। अब हम लोग अपने नौजवानों को सरकारी मुलाजमतें फराहम करने और तालीमी इदारों की जानिब से भारी फीस की वसूली पर AISF और AIYF के कारकुनों ने धरना पार्क पर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने बाद मुजाहिरीन की जानिब से प्रगति भवन जाने की कोशिश को नाकाम बनाया और सड़क पर रुकावटें खड़ा कर दी। पुलिस के साथ दंगा मुश्ती में AISF के रियासती सदर अशोक स्टालिन के पांव को काफी चोट भी आई। जिला कलेक्टर शर्मन ने मलकपेट के मजलिस की रुकन असम्बली अहमद बलाल के हमरा मूसा नदी चादरकाट की एक जानिब वाक़े सलम इलाकों का दौरा किया और हालिया बारिश के सबब नदी के करीबी इलाकों में रहने वालों को तखलीक की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि उस्मान सागर ज़खारियाब के दरवाजे खोले जा रहे हैं और मुसलसल ये पानी मूसा नदी में जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तमाम जिला कलेक्टरों को नशेबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात को मुंतकिल करने के काम जारी किए। इस मौके पर जिसमसी और पुलिस के अहदेदार भी मौजूद थे। తీగలది కూడా గవర్నమెంట్ ఒక ఆదేశం అంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు మరియు గౌరవ మినిస్టర్ గారు మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఆదేశించడం జరిగింది. నాకు ఎక్కడైతే ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళని జెన్యూన్గా ఎవరైతే పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ ల్యాండ్ ఎవరికి ఏం ఆధారం లేని వాళ్ళని మనకు JNNURM హౌజెస్ ఉన్నాయి కన్స్ట్రక్ట్ చేసినవి. అందులో ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం వాళ్ళని షిఫ్ట్ చేసి వారి యొక్క సమస్యని అంటే చాలా రోజులుగా ఉన్న సమస్య అది కాబట్టి వాళ్ళను అతి త్వరలోనే వాళ్ళని షిఫ్ట్ చేసి ఎక్కడైతే రెడీలీ అవైలబుల్ ఉందో మనకి JNNURM అక్కడికి వాళ్ళని షిఫ్ట్ చేయబోతున్నాం. వాళ్ళ రీహాబిలిటేషన్ కింద అక్కడికి అది ఎక్కడది మన ప్లేస్ మునుగనూరులో వాళ్ళని షిఫ్ట్ చేసి రీహాబిలిటేట్ చేసి వారి యొక్క దీర్ఘకాలంగా ఉన్న సమస్యను పరిష్కరించే దశలో భాగంగానే ఈరోజు నేను మరియు గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా వాళ్ళని అక్కడ ఆ లొకేషన్ విజిట్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళు కూడా అందరూ 100% కన్సెంట్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు.
ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశాలు వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళని కూడా ఇమీడియట్గా షిఫ్ట్ చేసి అక్కడ ఆ రోడ్ వైడనింగ్ కానీ లేకుంటే మూసిని బ్యూటిఫికేషన్కి దానికి ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के वफद ने वज़ीर दाखिला महमूद अली से मुलाकात की और जहीराबाद में सैयद यूसुफुद्दीन खादरी की जानिब से वक्फ अराजी फरोख्त करने की कोशिशों से आगाह किया. मौलाना खैरुद्दीन खादरी सूफी ने वफद की क़यादत की. उन्होंने बताया कि वज़ीर दाखिला ने उन्हें ज़रूरी कार्रवाई का तयक़ुन दिया है. उन्होंने बताया कि अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के एजाज़ियत की फौरी इजराई के लिए भी उन्होंने वज़ीर दाखिला से नुमाइंदगी की. हम जनाब महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला से मुलाकात करके बाहर निकले हैं. क़रीब 15-20 मिनट तक हमारी गुफ्तगू रही और महमूद अली साहब के सामने हमने ज़हीराबाद के मसले को सामने रखा है. सैयद यूसुफुद्दीन खादरी नामी वहाँ के औक़ाफ़ी जायदाद पर कब्ज़ा करते हुए वो नाजायज़ तरीक़े से उनको बेच रहे हैं. अभी हाल ही में 11 एकड़ 24 गुंठे ज़मीन को फ़रोख्त कर दिया गया है और ख़बरस्तान की ज़मीन पर मलकियत बनाकर किराए पे दिया जा रहा है और ख़बरों को मिसमार किया गया है. हम जिसके ताल्लुक़ से महमूद अली साहब से हमने कहा है कि आप वक्फ बोर्ड से इसके ताल्लुक़ से जो है ना तवज्जो दिलाए और सख्त से सख्त इक़दाम करें. महमूद अली साहब ने फौरी तौर पर कदम उठाते हुए वक्फ बोर्ड को आगाह किया है और ताकीद की है कि फौरी तौर पर 11 एकड़ ज़मीन पे का कब्ज़ा बर्खास्त किया जाए. और वक्फ बोर्ड के अमले के ताल्लुक़ से हमने बात की है और अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के भी इंशाअल्लाह अनक़रीब एजाज़े जारी हो जाएंगे और ग्रीन जोन में इसको लाते हुए हर महीना पाबंदी से जारी करने का भी हमसे वादा किया गया है. फिल्म नगर जुबली हिल में हुक्काम की तरफ से एक मंदिर को मुनज़्ज़म करने के दौरान कशीदगी पैदा हो गई. बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने एक खानगी अराजी में दाखिल होने और हुक्काम को इस कार्रवाई से बाज रखने की कोशिश की. एक मरहले पर एक नौजवान ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा लेने की कोशिश की. पुलिस ने सरकारी काम में मदाखलत और एहतजाज के जरिए माहौल खराब करने पर 150 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया. साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने रियासत में हालिया बारिश से मुतासरा खानदानों में फीके 10,000 रुपये की इमदाद देने का मुतालबा किया. उन्होंने कहा कि शुमाली तेलंगाना के अजला में हालात इंतहाई ख़राब हैं और आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. पूनम प्रभाकर ने कहा कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हैदराबाद के बारिश के मुतासरीन को 10,000 रुपये की इमदाद दी गई. चुनांचे इस मरतबा अजला के मुतासरीन को भी ऐसी इमदाद देने की ज़रूरत है. गौरव मुख्यमंत्री गारू ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు కూడా తెలంగాణ జిల్లాలో అంతర్భాగమే. ఇవాళ జిల్లాల ప్రజలు విపరీతమైనటువంటి వర్షంతో నీళ్ళల్లో ఇండ్లు మునిగి వేలాది ఇండ్లు మునిగి అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడతా ఉంటుంటే ప్రభుత్వం పూర్తిగా అచేతనంగా నిలబడి ఉంది. అలా నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, హైదరాబాద్ వాళ్ళు మాత్రమే ప్రజలు కాదు, ఉత్తర తెలంగాణలో తెలంగాణ ఆకాంక్ష కొరకు పనిచేసి అలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ప్రజలే. ఎన్నికలు లేని కారణంగా ఇక్కడ పొందిన 10,000 రూపాయల లబ్ధి అక్కడ ఎందుకు ఇస్తలేరని అడుగుతా ఉన్నా. అదేవిధంగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. दोनों शहरों में तालीमी इदारों की कुशादगी के बाद स्कूलों में कोविड-19 के तहत किए गए इंतजाम का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर शर्मन ने गवर्नमेंट सिटी मॉडल स्कूल चादरकाट और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल वाहिदनगर मलकपेट का अचानक दौरा किया. उन्होंने तलबा और साथीदा से बातचीत भी की. उनके हमरा मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला, मुक़िम तालीम, सेहत और बल्दिया के अहदेदार भी थे. RSS के सरबराह मोहन भागवत ने मुसलमानों को लुभाने की कोशिश के दौरान इस बात का याद किया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें मुल्क की तरक्की के मुकर्ररा हदफ को हासिल करने के लिए अक्सरियती फ़िरक़े के साथ मिलकर काम करना चाहिए. मुंबई में पीर को नेशन फर्स्ट नेशन सुप्रीम के उन्वान पर मुनक़दा सेमिनार से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को मुसलमानों से कोई बुग़्ज़ या अनाद नहीं है, दोनों तबक़ात को मिलजुल कर रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुल्क के हिंदू और मुसलमानों के आबा व अजदाद एक ही हैं, जबकि इस्लाम मज़हब हमलावर अपने साथ लेकर आए और ये कोई ढकी जुबी बात भी नहीं है. मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमानों को अपनी सफ़ों में मौजूद कट्टर पसंदों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और उन्हें अलग थलग करने की ज़रूरत है. इस सेमिनार के दीगर मुखर्रीन में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सैयद अता हुसैन वगैरह शामिल थे. मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 31,222 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 290 नई अमवात हुई हैं. मरकजी वजारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि सिर्फ केरला में 14,688 केसेस रिपोर्ट हुए. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 6 सितंबर को एक दिन में हिंदुस्तान भर में
15,26,000 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इसी दौरान हुकूमत ने दावा किया कि कल 1,13,53,571 अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए गए। इस तरह अब तक 69,90,62,776 अफराद ये टीके ले चुके हैं।